Thank you everyone for joining today's program organized by Friends of India Society International. I am Vivek Sinha, one of the General Secretaries of FISHI, welcoming you to this great conference on one of the most important issue which is impacting world at large. The Friends of India Society International has conducted seminars, workshops, and presentations by distinguished persons on matters of India and the world at large. Friends of India Society International plans to educate the Friends of India all over the world in support of India causes and the world togetherness. In this series, we have a very dynamic presentation on a very good topic by Shanta Kumarji. Today's topic is आतंकवाद कब और कैसे होगा समाप्त. This issue, this topic is central to the world living in a harmony and understanding of human behavior. As we start this program, please mute yourself throughout as well as during the Q&A. At this time, I would like to request Dr. Agnihotri, Dr. Bhishn Agnihotri, just to give you a little bit about Dr. Agnihotri, as we all already know. Dr. Agnihotri has served various organizations in the service of the community at large. He served as the first person of India origin to head an American law school and was dean and chancellor for the longest tenure in American law school. Dr. Agnihotri was appointed as the first ambassador at large by the government of India in 2001. He traveled the world strengthening the ties of NRIs from all backgrounds, gender and religion to our motherland, India. So without further ado, it is my great pleasure to invite Dr. Bhishn Agnihotri to introduce the speaker and the topic. Dr. Agnihotri. धन्यवाद जी. अब देखिए, हमारे जो गेस्ट हैं वो तो हिंदी में बोलने वाले हैं. अब मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है पिछले 20 सालों से, 40 सालों से, तो बोल लूँगा हिंदी में. तो इसलिए शांता जी, मुझसे वो ना मेरी वो सोच ना करो मेरे बारे में जो पहले थी हिंदी के बारे में. मैं बोलूँगा अवश्य हिंदी में. देखिए, शांता जी ने हम पे बहुत कृपा की है. आज मैंने इनको रिक्वेस्ट की. मुझे मालूम है कि इनका इतना समय व्यस्त था, कई बातों में उलझे हुए थे, सुलझे हुए थे. फिर भी इसके बाद भी उन्होंने हम वो इसलिए नहीं मानी कि हमने कहा. उनका स्वभाव है ऐसा. जब से 60 साल से उन्होंने अपना पब्लिक लाइफ जो है वो जारी की है, तब से आज तक अभी तक चल रहा है. उन्होंने अच्छे काम के लिए, सच्चे काम के लिए, देश के लिए कोई ऐसी बात नहीं सोची जो नहीं की हो. He was always ready to do it. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं मैं कह रहा कि आप लोगों ने एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी उनके बारे में. Everybody knows about his life accomplishments, his achievements, his scholarship, his कई बार बने member of legislature, सेंटर में, स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर बने, वगैरह 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 बहुत कहानियाँ. और हमारे साथ जब मैं था उस वक्त वो अटल जी के साथ थे, मिनिस्टर थे. और बहुत सी कहानियाँ मुझे याद है उन सब बातों की. उनकी बात अभी नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ये देखा उनके जीवन में कि वो he was a total source of inspiration because he never said no to देश work.
देश के लिए हमेशा वो तत्पर रहे। अब कहानी क्या चालू करूं, आप सब जानते हैं, हमने सब पढ़ा हुआ है, आपको लिख के भेजा था हमने। पर देखिए, कुछ बातें मैं शुरू करूंगा ऐसी जो आपको मालूम ही होंगी, लेकिन देखिए, इन्होंने पहली बार जो हम इनसे प्रभावित हुए, मैं प्रभावित हुआ, वो थी इनकी पुस्तक जो लिखी थी इन्होंने 1962 में, धरती बलिदान की। प्रभावित हुआ, मैं भी इनके साथ था, हम इकट्ठे थे हर जगह में, लेकिन बहुत प्रभावित हुए। हम किसी और जगह पे थे समूह में, लेकिन उसी सिलसिले में थे। I had become a judge at that time, but he was still working as struggling with the adverse forces. Then उनकी जो दूसरी पुस्तक आई, उसमें इन्होंने तो तहलका ही मचा दिया यूथ में। हिमालय पर लाल छाया 1964, वो था कि जो चेचेन का मामला हुआ 62 अक्टूबर में, उनका जो अटैक हुआ उसके बारे में, और उसकी जो जिसमें उन्होंने जान डाली उस सारे विषय पे, वो हमें याद है कि जो भी पढ़ने वाला था उसमें यूथ, वो बड़ा प्रभावित हुआ इस बात से, और उसमें लगा उनकी पूरी व्यक्तित्व उसमें जाहिर हुआ। और इसके बाद एक और किताब आई, इसलिए मैं कह रही हूँ किताबें जो थी वो शुरू में आई थी, और शुरू में वो आगे बढ़ रहे थे अपनी सोशल कल्चरल लाइफ में और पॉलिटिकल लाइफ में। किताब लिखी उन्होंने विश्व विजेता विवेकानंद। और आप जानते हैं नहीं जानते, मैं तो जानता हूँ कि 1968 में उन्होंने किताब लिखी वो, और उसका वन नाद हर जगह पहुंचा, देश प्रदेश में पहुंचा, हर भारतीय के मन में पहुंचा कि विवेकानंद जी के क्या थे। उसके बाद विवेकानंद जी के बाद और भी पुस्तक लिखी, मैं उनकी बातें वो डिटेल्स भी नहीं करूंगा कि समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनकी बातें सुने। लेकिन इन पुस्तकों के द्वारा उन्होंने जो इंस्पिरेशन यूथ में लाई, बिना किसी लाग और लगाव के और बिना किसी पर्पस के लिए, एक उनमें कुछ तो उनमें मिलने वाला है, वो चाहता था कि वो उससे देश जो है वो सभी प्रभावित हुए। फिर उस 60 साल के इस उम्र में उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा, लोगों ने उनको पूरा विश्वास किया, उन्होंने जो काम करना था वो किया, और डट के किया, देश के लिए किया, व्यक्ति के लिए नहीं किया। और उसके बाद कई बार उलट पुलट हुई बातें, फिर भी उन्होंने अपने आप को, अपना धैर्य नहीं छोड़ा। इसके लिए मैं बताता हूँ और बहुत किताबें उन्होंने लिखी हैं, पर मैं आता हूँ एक किताब के बारे में जो आजकल की है, और वो इसलिए मैं कहता हूँ उसमें आपको कुछ मिलेगा उनके बारे में जो उनको जानना, आपको जानना चाहिए। मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ये किताब पढ़ी नहीं है पूरी तरह से, पर अब शुरू की है पढ़नी। मैं जाने वाला था वहां पे उनकी किताब में विमोचन के लिए 5-6-7 दिन पहले, पर जा नहीं पाया। तो उन्होंने किताब लिखी, पहले किताब का नाम था, जो असली किताब थी शुरू में, कोई 1.5 साल पहले शायद थी, कि निज पथ के अविरल पंथी, अविचल पंथी। ये किताब का नाम था, उनकी जीवनी के बारे में, और बड़ी अच्छी किताब थी नेचुरल। पर वो उसके बाद वो प्रॉब्लम शुरू हो गए कोविड के, और उसमें हमारी उनका नाम लेना जरूरी है। हमारी जो बहन है जो शांता जी के साथ रही हमेशा, और जो खुद बड़ा अच्छा लिखती थी, वो चली गई अप्रैल के महीने में, और उनका साथ था हर चीज में, और उस पुस्तक में भी उनका साथ था जो हिंदी में
प्रकाशित हुई। फिर उसके बाद एक छोटी सी कहानी है इस बात की, कहानी की नहीं, बात है कि उन्होंने जाने से पहले कहा कि इसका इंग्लिश अनुवाद करना चाहिए, और वो इनके जीवन पे थी, इनकी बायोग्राफी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, उनमें उनका हाथ था। तो वो फिर इनकी बिटिया ने सब मिलके वो जल्दी में वो अंग्रेजी किताब लिखी, जिसको अभी कुछ दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ। वो इसलिए जरूरी है ये पुस्तक कि उनके जीवन के बारे में जो जानना चाहते हैं उस पुस्तक में है। अच्छा भी है, जो लोगों को लगेगा, जो ऐसी बातें जो अच्छी लगी नहीं लगेंगी, और उसमें कुछ बातें जो मुझे भी मालूम है, जो लोगों को अच्छी नहीं लगी, मुझे मालूम थी उस वक्त अच्छी नहीं लगी। और ये है कि उन्होंने मुझसे बात भी की उस बारे में, मैं बताऊंगा नहीं बात की क्या बात हुई, लेकिन वो बात हुई और उसका जिक्र उन्होंने किताब में किया और कई लोगों को पसंद नहीं आई। पर इसीलिए उस किताब का नाम लिखा गया कि लिविंग माय कन्विक्शन, कि मैं तो अपना जो जीवन है, मेरी कन्विक्शंस है, जो धारणा है, जो मेरी कमिटमेंट है देश के प्रति, लोगों के प्रति, सच्चाई के प्रति, वो बिल्कुल अडिग है, और वो इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर एनी कॉस्ट एनी प्राइस। इसलिए उन्होंने एक बार अपनी सरकार भी उसको छोड़नी पड़ी कि नो 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 पेमेंट, जो भी था, नो वर्क नो पेमेंट, नो, ऐसा कुछ था। उसमें लोगों ने कहा ये क्या होता है, और खासकर हिमाचल प्रदेश में जहाँ लोग काफी लोग काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, तो सोचते हैं ये बात गलत है। पर सच उन्होंने कहा ये हमारा, ये बात ठीक है, हमें काम करना चाहिए आपको, आप अगर आप चाहते हैं तो। खैर नहीं भाई, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा मैं, तो है नहीं, मैं ये ऐसा विषय है कि मैं तो इस विषय पे 2-3 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा आनंद है कि आप हमारे साथ हैं। आपकी सारी कहानी लोगों को पता है, बाकी जो पढ़ना चाहेंगे मेरे ख्याल में पढ़ ले, मैं भी पढ़ूंगा इसको डिटेल्स में। उसमें लगेगा कि एक आदमी जो है वो राजनीति में आ सकता है, लोगों में प्रिय हो सकता है, और हो सकता है चाहे वो कई बातों में लोगों की बात को ठीक से करने में सफल हो जाए, ना हो सफल फिर भी चलता रहेगा। ये बात बहुत आवश्यक है, ये बात बड़ी गुणी है। मैं तो परिवार को जानता हूँ, मैं उनको परिवार का मेंबर हूँ, समझ लीजिए आप, हम परिवार के मेंबर ही हैं। तो मैं तो जानता हूँ कि बच्चे को भी, सबको जानता हूँ, और कैसे उन्होंने शुद्ध जीवन बिताया अपना। हिज लाइफ हैज बीन लाइफ ऑफ टोटल कमिटमेंट फॉर कॉजेस। इसलिए मैंने सोचा, मैंने चाहा, और मैंने रिक्वेस्ट की इनसे कि हमारे साथ आप भी आइए। और आजकल जो ज्वलंत एक चीज है कि भाई अब क्या होने वाला है इस सिलसिले में, जो कल चल रहा है, कभी खत्म होगा कि नहीं होगा ये, तो उसके बारे में मैंने कहा कि आपसे बात करें तो अच्छा रहेगा। तो इतना ही मैं कहूँगा, कहना तो बहुत चाहता हूँ पर फिर कहूँगा कभी। यह हिमालय से ये आए हैं, धार के साथ रहे हैं, और मेरा भी उसमें संबंध है। जो धार के साथ रहेगा, हिमालय के साथ प्यार करेगा, उसकी पूजा करेगा, ठीक से पूजा करेगा, वो कभी गलत हो सकता ही नहीं। शांता जी, अब आप। पिछले लगभग 60 वर्षों से मेरे परिचित और आदरणीय बड़े भाई श्री भीष्म अग्निहोत्री जी, और इस संवाद में भाग लेने वाले सम्माननीय मित्रों, बहुत आभारी हूं इस आयोजन के लिए। बहुत धन्यवादी हूं कि मुझे आज आप सब मित्रों के साथ
भारत के एक अत्यंत ज्वलंत प्रश्न पर कुछ बात कहने का मौका मिला है। आतंकवाद कब कैसे होगा समाप्त, सोचता रहा कुछ दिन। एक विचार मन में आया, प्रश्न आया, लाखों वर्षों से मनुष्य धरती पर रह रहा है, लाखों वर्षों से। 21वीं सदी में उस मनुष्य की सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? तो मुझे लगा उपलब्धियां, ढेर सारी उपलब्धियां। मनुष्य ने क्या नहीं प्राप्त कर लिया। समुद्र की गहराई को नाप लिया, आकाश की ऊंचाई को नाप लिया, चांद की चट्टान उठाकर ले आया, ग्रहों पर पहुंच रहा है। अब तो मनुष्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली। इतनी उपलब्धियां हैं मनुष्य जाति की, इतनी उपलब्धियां हैं, सोचकर मन प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। ये 21वीं सदी में मनुष्य जाति का सौभाग्य। फिर एक प्रश्न पैदा हुआ कि 21वीं सदी में मनुष्य जाति का कोई दुर्भाग्य भी है? तो एक पंक्ति में मेरे सामने आया, दुर्भाग्य यह है कि इतना कुछ प्राप्त कर लेने के बाद, लगभग सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद, मनुष्य को इस धरती पर प्रेम से, चैन से जीना नहीं आया। ये आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वैसे ही एक प्रश्न पर आज हम विचार कर रहे हैं। ये आतंकवाद पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा संकट बन गया है। विश्व पहले भी बारूद के ढेर पर बैठा है। नागासाकी, हिरोशिमा में जो बम गिरा था, जिससे लाखों लोग मरे थे, उसके मुकाबले पर कई गुना अधिक शक्तिशाली बम दुनिया में लगभग सभी देशों ने बना लिए, रोज बना रहे हैं, नए नए मिसाइल बन रहे हैं। आखिर ये बन रहे हैं तो कभी तो इस्तेमाल होंगे। तो ये कहना चाहिए कि ये दुनिया पहले ही बारूद के ढेर पर बैठी है। अब ये आतंकवाद का एक नया संकट, और भारतवर्ष में, हिमाचल में, तो हमारे पड़ोस में जम्मू कश्मीर में रोज दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई घटना घटती है। छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं, कुछ बहनें विधवा हो जाती हैं। धरती का स्वर्ग कश्मीर नर्क बनता जा रहा है। हमारा पड़ोसी प्रतिदिन आतंकवादी भेज रहा है, और भारत में तो इस प्रकार की और भी बहुत बड़ी घटनाएं घटी है। दुनिया में सबसे बड़ी आतंकवाद की घटना अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भयंकर आक्रमण। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका का सब कुछ एक बार तो आतंकित हो गया। और फिर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में आतंकवादी आक्रमण। मैं उन दोनों मंत्री था, मैं वहीं था। 10 मिनट पहले किसी आवश्यक बैठक के लिए निकला, साथ में कृषि भवन में मेरा ऑफिस था, मैं पहुंचा नहीं और गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। इस प्रकार की कई घटनाएं, ताज, ओबराय, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या, राजीव। मैं ये कहना चाहता हूं, इतना असीम, इतनी पूरी तरह से पूरे विश्व को त्रस्त कर लिया इस आतंकवाद ने, और पूरा विश्व चिंतित है, परेशान है। अब एक प्रश्न पैदा होता है, इसकी व्याख्या क्या है? किसको आतंकवाद कहें? मुझे लगता है संक्षेप में, जब कभी कोई व्यक्ति, समूह, देश अपनी ही बात मनवाना चाहता है और उसके लिए किसी भी प्रकार के हिंसा के, गैर कानूनी
रास्ते को अपनाता है, उसको हम आतंकवाद कहेंगे। अपनी बात को सच्ची समझना या किसी स्वार्थ के कारण किसी भी प्रकार की हिंसा का उपयोग, इसकी व्याख्या है। अब अगर हम सोचें कि इसके कारण क्या है, बहुत कारण है। एक तो जनसंख्या विस्फोट ने कुछ देशों में विचित्र स्थिति पैदा कर ली है। जनसंख्या बढ़ गई, साधन कम हो गए, गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक विषमता बढ़ी। और आर्थिक विषमता भी एक बहुत बड़ा कारण है। भारत में जब नक्सलवाद बढ़ा तो भारत सरकार ने 14 विद्वानों की कमेटी बनाई। रिपोर्ट थी, मैंने राज्यसभा की एक चर्चा में उस रिपोर्ट को उद्धृत किया था। 14 विद्वानों ने एक मत से कहा, कोई नक्सल विचारधारा नहीं है वहां, कोई साम्यवादी विचारधारा नहीं है। वो सारा क्षेत्र ऐसा था जहां भयंकर आर्थिक विषमता, भूखमरी थी। कुछ लोगों ने भयंकर शोषण किया था गरीब का, गरीब दुखी था, परेशान था, कुछ कर नहीं सकता था, भूखे मरता था। वहां बंगाल से कुछ नक्सलवादी पहुंच गए, उन्होंने कहा भूखे मर रहे हो, चलो हमारे साथ बंदूक पकड़ो, और गांव के गांव नक्सलवादी हो गए। रिपोर्ट में लिखा था कोई नक्सलवाद नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, भूख से मर रहे थे लोग, शोषण के खिलाफ उठ खड़े हुए, क्योंकि भूख मनुष्य से सब कुछ करवा देती है। मुझे एक उर्दू के कवि की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। तन की हबस मन को गुनहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। हमारे यहां भी कहा गया है, बुभुक्षता किम न करोति पापम, भूखा कौन सा पाप नहीं करता। आर्थिक विषमता बढ़ रही है, विकास बहुत हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है विकास हो रहा है, सामाजिक न्याय नहीं हो रहा। जितना विकास हो रहा है उतनी आर्थिक विषमता बढ़ रही है, और जितनी आर्थिक विषमता बढ़ रही है उतना लोगों में परेशानी, दुख पैदा हो रहा है, गुस्सा पैदा हो रहा है, और वो गुस्सा किसी भी प्रकार का रूप धारण कर लेता है, वो कभी कभी आतंकवाद का रूप भी धारण कर लेता है। एक और सबसे बड़ा कारण जिहाद, मजहबी जनून, भयंकर भयंकर। मानवता शर्माती होगी इन बातों को देखकर। छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर कहीं स्कूल में के मदरसे में ब्रेन वॉश करना, सिखाना और उनको तैयार करना, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है। और छोटे छोटे बच्चे और युवा अपने शरीर के साथ बम बांधकर चले जाते हैं, धमाका करते हैं, लोग मरते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? मनुष्य पशु से भी बदतर हो गया। ये जो है जिहाद, मजहबी जुनून, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आज के आतंकवाद का। फिर नशे का व्यापार, बल्कि मैंने कहीं पढ़ा कि अफगानिस्तान की तो कुल आय का एकमात्र साधन नशे का व्यापार है। नशा आतंकवाद मिलकर और भयंकर हो गया है। कुछ बड़े देशों की दादागिरी अपने स्वार्थ के लिए, विश्व युद्ध के बाद कुछ बड़े देशों ने मिलकर खाड़ी के देशों के साथ बड़ा अन्याय किया था, और उसके कारण भी रोष है, गुस्सा लोगों में है। और उस गुस्से के कारण, उस गुस्से को कभी कोई भी रूप मिल जाता है, और कभी कभी आतंकवाद का रूप मिल जाता है, उसका लाभ उठाते हैं। एक सबसे खतरनाक बात नहीं हुई है, पता नहीं कहां से धन आ रहा है आतंकवाद के लिए। अब तो आतंकवाद एक धंधा बन गया। आतंकवादी जब आतंकवाद के लिए आते हैं, वो रेगुलर एम्प्लॉय है किसी संगठन के, उनको वेतन मिलता है।
इतना ही नहीं, मर जाने पर उनका बीमा, उनके घर वालों को पैसा मिलता है। ये रिपोर्ट पिछले दिनों पढ़कर मैं बहुत परेशान हूं। बेरोजगारी है, गरीबी है, लोग सोचते हैं यही करो। और अगर उनके दिल और दिमाग को प्रेरित भी किया हो किसी जिहाद के मजहबी जुनून से, तो ये सब कारण हैं जिन कारणों से आज सब जगह ये आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। अभी अभी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हैरान होता हूं कई बार, दुनिया की दो महाशक्तियां रूस और अमेरिका लगभग 40 साल अफगानिस्तान में रहे। पहले रूस रहा, लड़ता रहा और कहा यह गया कि आतंकवाद को समाप्त कर रहा है, लेकिन उन्हीं दोनों मुजाहिदीन को ट्रेन किसने किया? लोग कहते हैं पाकिस्तान ने किया, अमेरिका ने किया, और मुजाहिदीन को वहां भेजा। 20 वर्ष लगाकर रूस अफगानिस्तान से चला गया और अमेरिका आ गया। फिर अमेरिका भी लगभग 20 वर्ष रहा। बड़ी हैरानी की बात है, विश्व की दो महाशक्तियां आतंकवाद समाप्त करने के लिए अफगानिस्तान में रही, और आज क्या परिस्थिति है कि उसके बाद अफगानिस्तान दुनिया का आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। एक बात सोचकर बड़ी हैरानी होती है, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बहुत बड़ा धक्का था अमेरिका। उसामा बिन लादेन गुम हो गया, एक देश ने छुपा लिया उसको। अमेरिका उसको पकड़कर मारना चाहता था, लंबा समय लग गया, लेकिन इतना साधन संपन्न है अमेरिका, इतना शक्तिशाली है अमेरिका कि अमेरिका ने उसको ढूंढा और एयर ड्रॉप किए अपने कमांडो, निकाला, पकड़ा, मारा। इतना साधन संपन्न अमेरिका वो 20 साल तक अफगानिस्तान में क्या करता रहा समझ नहीं आता। एकदम 20 साल के बाद कहने लगा हम थक गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, हमारे बहुत से लोग मर गए, मैं वापस जाना चाहता हूं। फिर एक और हैरानी होती है, जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ रहा था तो विश्व समुदाय ने, किसी ने नहीं सोचा कि अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद क्या होगा। राष्ट्र संघ ने नहीं सोचा। अगर विचार करना चाहिए था कि अफगानिस्तान में आतंकवाद था, 20 साल लगाए, अब अमेरिका छोड़कर जा रहा है, तो अमेरिका के छोड़ने के बाद क्या होगा वहां पर? चाहिए तो यह था कि अमेरिका ही राष्ट्र संघ को कहता, विश्व समुदाय को कहता अब मेरे बस का नहीं है, मैं छोड़कर जाना चाहता हूं, आओ बैठो विचार करो, बाद में क्या करना है इसका। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है आज की दुनिया की। विश्व की दो महाशक्तियां जाने अनजाने अफगानिस्तान को दुनिया के आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा बना लिया, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारत का है। आप पड़ोस में अफगानिस्तान, तालिबान हुकूमत बन गई, जो कल तक आतंकवादी थे वो मंत्री बन गए, जो कल तक आतंकवादी था वो प्रधानमंत्री बन गया, वो रक्षा मंत्री बन गया। पाकिस्तान पूरी मदद कर रहा है, दुनिया की एक और महाशक्ति चीन मदद कर रही। 3 देश इकट्ठे हो गए और मानवीय मूल्यों की हत्या की जा रही है वहां पर हमारे पड़ोस में। और जब से अफगानिस्तान से अमेरिका गया, तब से हमारे जम्मू कश्मीर में, बांग्लादेश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई हैं। अब आतंकवादी संगठन खासकर जो जम्मू कश्मीर में, उनका अड्डा बन गया। अब 21वीं सदी में, इस युग में, जबकि यूनाइटेड नेशन है, दुनिया की 2 महाशक्तियां 40 साल वहां क्या करती रही,
ये बात समझ नहीं आती और मुझे लगता है जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती बात है। अगर दोनों देश ईमानदार होते, एक दूसरे की मदद करते, अफगानिस्तान में आतंकवाद बिल्कुल नहीं होता। लेकिन बड़े बड़े देशों को भी अपने स्वार्थ सामने है। आतंकवाद बाद में, अपने देश का स्वार्थ, अपने देश का एजेंडा वो उनके सामने है। एक और बात ध्यान में आती है कि राष्ट्र संघ असहाय हो गया, मूक दर्शक बन गया। फिर किससे आशा करें विश्व का मानव? वैसे मैं आपको बताऊं कि राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत पोटेंशियल है राष्ट्र संघ का। मुझे 15 दिन न्यूयॉर्क में जाने का मौका मिला था। एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में 3 बार राष्ट्र संघ में भाषण करने का सौभाग्य भी मिला। हमने पूरा घूम करके देखा था। सचमुच सचमुच मैं नमन करता हूं उन लोगों को जिन्होंने राष्ट्र संघ की कल्पना की। हर देश की समस्या के बारे में चिंतन मनन होता है वहां पर, प्रतिदिन बैठकें होती हैं, दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं, दुनिया भर की गरीबी कैसे दूर हो। मैंने इस प्रकार की एक सभा अटेंड की, मैं हैरान हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्र संघ के काम को अगर आगे बढ़ाया जाए तो सचमुच विश्व युद्ध रुक सकता है, दुनिया की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इतना अधिक पोटेंशियल होने के बाद आज राष्ट्र संघ असहाय क्यों हो गया, खामोश तमाशाई क्यों बन गया, ये समझ में नहीं आता और एक चिंता का विषय है। मैंने जैसे कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा संकट अफगानिस्तान, एक छोटी सी आशा की किरण। कभी कभी 20 साल अफगानिस्तान के लोगों ने लोकतंत्र का आनंद लिया, बच्चे स्कूलों में गए, लड़कियां पढ़ी, अब सब कुछ समाप्त हो गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो सड़कों पर आए, बेटियां बच्चे सड़कों पर आए, प्रदर्शन होते रहे। अभी भी कभी कभी समाचार आता है, पंचशील के समाचार आते हैं। यदि विश्व समुदाय वहां कुछ कोशिश करे, वैसे वहां के जो समाचार आ रहे हैं, घरों में घुट रहे हैं बच्चे, लड़कियां घुट रही हैं, 20 साल जिन्होंने पढ़ाई की वो घर में बंद है। और देखिए 21वीं सदी में क्या कहा जा रहा है वहां, तुम घर में रहो, बच्चे पैदा करने का काम करो। क्या हो गया? कहां जा रही दुनिया? और दुनिया इस बात को बर्दाश्त कर रही है। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अफगानिस्तान में चिंता है, विरोध है, सड़क पर लोग आए हैं। यदि विश्व समुदाय सहायता करे तो मुझे लगता है वो आशा की किरण कुछ आगे भी आ सकती है। अब इसका समाधान क्या हो, कब हो, बहुत कठिन है इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि कुछ देशों का निहित स्वार्थ हो गया है। कुछ देश आतंकवाद बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कुछ देश आतंकवादियों को फाइनेंस कर रहे हैं, और पता नहीं पैसा कहां से कितना आ रहा है। जिहाद के नाम पर आ रहा है, मजहब के नाम पर आ रहा है, कैसे आ रहा है। तेल का पैसा है, ये तेल का पैसा किसका तेल निकाल रहा है। दुर्भाग्य है, ये बहुत दुर्भाग्य है। समाधान क्या हो? मैं सोचता हूं विश्व के अंदर एक प्रबल जनमत जागृत हो। एक संस्था है विश्व के पास, बहुत बड़ा पोटेंशियल है राष्ट्र संघ में, उसको सशक्त किया जाए, समाधान निकल सकता है। दुनिया भर के विद्वान, बुद्धिजीवी, लेखक, कवि आगे आए
नोबेल पुरस्कार विजेता आगे आए, मानवता को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाएं। कुछ बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं उनको अपील करता हूं, आज मानवता को बचाने के लिए आप आगे नहीं आएंगे तो कब आएंगे? पूरे विश्व का बुद्धिजीवी समुदाय इस विषय पर आगे आए, एक हो करके प्रबल जनमत विश्व के अंदर खड़ा हो कि अब इससे ज्यादा नहीं। और फिर दुनिया के बड़े देशों को जनमत के आगे मजबूर किया जाए ईमानदारी से सोचने के लिए, राष्ट्र संघ को मजबूत किया जाए, राष्ट्र संघ निर्णय करे। हर देश को अपने तरीके से अपने देश की सरकार चलाने का अधिकार है, उसमें दखल नहीं दिया जा सकता, लेकिन न्यूनतम मानवीय मूल्य उसकी एक रूपरेखा बनाई जाए। कम से कम ये जो मानवीय मूल्य हैं, इनका हनन किसी देश में नहीं होना चाहिए, विश्व समुदाय स्वीकार नहीं करेगा। और यदि किसी देश में, जैसे आज अफगानिस्तान में हो रहा है, उसका नोटिस लिया जाए, राष्ट्र संघ उस पर विचार करे, उस देश को कहा जाए, और अगर वो देश ना करे तो पूरी दुनिया के सभी देश उसका बाइकआउट करें। मैं सच कहता हूं, अगर पूरी दुनिया के देश ऐसे देश का बाइकआउट करें, समस्या का समाधान हो सकता है। आज कोई देश अकेला नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। कितने ही प्रकार की उसकी बातें जो पड़ोसी से करनी है, दुनिया के बाकी देशों से करनी है, कहीं से उसको धन लेना है, कहीं से कुछ करना है। प्रबल जनमत वैश्विक जागृत हो और उस जनमत से बल पर हम राष्ट्र संघ को मजबूत करें, इतना मजबूत करें कि राष्ट्र संघ एक सशक्त संस्था बन जाए और तय करे यह है न्यूनतम आवश्यकताएं मानवीय मूल्यों की। बाकी जैसे चाहो अपने देश का शासन चलाओ, डेमोक्रेसी करो, कोई कृषि करो, लेकिन ये मानवीय मूल्य हैं, इनका हनन किसी देश में विश्व समुदाय स्वीकार नहीं करेगा। और अगर होगा तो विश्व समुदाय उसका बाइकआउट करे। अगर ईमानदारी से बड़े देश इस पर सहमत हो जाएं, समाधान हो सकता है। भारत जैसे देश को पहल करनी चाहिए। मैं चाहूंगा भारत बाकी देशों से मिलकर पहल करे मानवता की रक्षा के लिए। तो मेरी दृष्टि में तो एकमात्र यही एक तरीका है जिसके आधार पर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं जब इस विषय पर विचार कर रहा था तो आखिर में एक विचार मेरे मन में आया, आपको बड़ा विचित्र लगेगा। जब इस दुनिया में आतंकवाद नहीं था, नाम भी नहीं था, दूर दूर तक कोई आशंका भी नहीं थी आतंकवाद की, तब आज से हजारों साल पहले मेरे देश के मनीषियों ने इसका समाधान निकाला था। मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, रोग पैदा होने से पहले दवाई निकाली थी। पहली बात, सदियों पहले मेरे देश के मनीषियों ने हिमालय की चोटी पर खड़े होकर के कहा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। ये वेदांत की मान्यता, कितना बड़ा विचार है। मैं जब ये कह रहा हूं वसुधैव कुटुंबकम, तो एक एहसास से पुलकित हो रहा हूं कि आप सब जिनको मैं संबोधित कर रहा हूं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। ये विचार दिया था मेरे देश के मनीषियों ने।
पूरी दुनिया एक परिवार है, हम उस परिवार के सदस्य हैं। फिर एक और बात कही, कहा कि सब में भगवान है, एक ही भगवान है। ये विचार दिया वेदांत ने। इस पूरी सृष्टि का जो संचालन कर रहा है, किसी नाम से पुकारो, खुदा कहो, गॉड कहो, भगवान कहो, नेचर कहो, कुदरत कहो, लेकिन कोई तो शक्ति है जो उस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वो शक्ति, परम शक्ति भगवान सब में है, और वही मुझ में है, वही आप में है। ये विचार दिया। एक और बात कही, जब अलग अलग देश के लोगों ने पूजा करने के तरीके निकाले, पूजा पद्धतियां बनी, तो हमारे ऋषि मुनि ने एक और बात सोची और कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म सभा में कहा, जैसे नदियां अपने अपने रास्ते से होकर के आखिर में समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही हर धर्म के रास्ते से एक भगवान के पास लोग पहुंचते हैं। रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। रास्तों का कोई झगड़ा नहीं है। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा, मेरे धर्म के अनुसार किसी को अपना धर्म छोड़कर आने की कोई जरूरत नहीं। अपने अपने रास्ते से जाइए, पहुंचोगे वही, मंजिल वही है, भगवान एक है। क्या जोरदार विचार दिया मेरे देश के मनुष्यों ने। एक और बात कही, उनको लगा विश्व में विविधता है, अलग ढंग से लोग सोचेंगे, आप कुछ और कहेंगे, मैं कुछ और कहूंगा, तो एक दूसरे की बात सुनने का सामर्थ्य और अपनी बात कहने की आजादी, विचार स्वातंत्र। मेरे देश के ऋषि महर्षियों ने विचार स्वातंत्र की बात कही, और इसीलिए अध्यात्म की इतनी बड़ी ऊंचाइयों को मेरे देश ने छुआ। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने जब वेद देखे, उपनिषद देखे, तो कहा था, अध्यात्म की इतनी ऊंचाइयों पर भारत के ऋषि मुनि सांस ले सकते थे। विचार स्वातंत्र। स्वामी विवेकानंद जी ने कहीं अपनी बातचीत में एक और बात कही थी, कहने लगे, प्रभु ईसा यहूदी धर्म के खिलाफ बगावत की तो सूली पर लटकाए गए। ठीक वैसे ही भारत में महात्मा बुद्ध ने वैदिक कर्म कांड के खिलाफ बगावत की। कल्पना करिए, महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व से इनकार कर दिया, लेकिन महात्मा बुद्ध 80 वर्ष लिए भारत, किसी की हिट लिस्ट पर नहीं आए। अगर बुद्ध वहां होते तो सूली पर लटकाए जाते। अगर ईसा मेरे देश में होते तो 80 साल तक जीवित रहते। ये मेरे देश ने सिखाया। अंत में एक और बात, गीता में बहुत कुछ है, मैंने गीता का पाठ नहीं किया, गीता की 2-4 बातों को जीवन का हिस्सा बना लिया। अब कल्पना करिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन कहता है, कृष्ण गांडी मेरे हाथ से जा रहा है, मैं परेशान हो गया हूं, मैं भाग जाना चाहता हूं, इनको मारूं, अपने संबंधियों को, मुझे रास्ता बता। और भगवान कृष्ण 18 अध्याय कहते हैं, ये कर्म का रास्ता है, ये भक्ति का रास्ता है। पूरा अध्यात्म कहते हैं। आखिर में क्या कहते हैं? इस श्लोक की ओर टीकाकारों का बहुत कम ध्यान गया है। 18वें अध्याय का वो श्लोक मेरी दृष्टि से भारत के अध्यात्म का बहुत ऊंचा श्लोक है। 18वें अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इति में ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतर भया। अर्जुन, मैंने तुम्हें गहन से गहन ज्ञान कह दिया।
जो गहरे से गहरा ज्ञान था सारा तुझे कह दिया। दूसरी पंक्ति में क्या कहा, विमृश्य एतत् अशेषेण, इस ज्ञान को तू अच्छी तरह से सोच, और अंतिम बात क्या कही, यथोचिति तत्करु, इस सारे ज्ञान को अच्छी तरह से विचार कर, फिर तुझे जो ठीक लगता है वो कर। विचार स्वातंत्र, विचार स्वतंत्र मेरे देश की विशेषता थी। यहां चारवाक है, चारवाक क्या लगे, खाओ पियो मौज करो, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, वो किसी की हिट लिस्ट में नहीं आया। हमारे देश के लोगों ने कहा सुनो, इनको भी सुन लो। और एक मजेदार बात, महात्मा बुद्ध पैदा यहां हुए, बुद्ध मत पैदा यहां हुआ, लेकिन भारत ने बुद्ध मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध मत की पूरी फिलॉसफी हमारे पड़ोस में तिब्बत में जाकर के बनी, स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहा हाँ प्रचार करने दो, इनको अपनी बात कहने दो। ये चार बातें अगर दुनिया में हो जाए, चार बातें, पूरा विश्व एक परिवार है, सब में एक भगवान है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, और जैसे नदियां अपने अपने रास्ते से चलकर समुद्र में मिलती हैं, वैसे सभी धर्मों के रास्ते से चलकर हम एक भगवान के पास पहुंचते हैं। अगर ये चार बातें आज भी विश्व मान ले तो ये दुनिया रहने के योग्य हो जाए। मुझे यही तरीका लगता है, लेकिन सचमुच बहुत भयंकर हो रहा है आतंकवाद की समस्या, अत्यंत ज्वलन समस्या आज के मानव की। और आपने बहुत बढ़िया विषय चुना, मुझे जो जितना लगा वैसे इस संबंध में अपनी बात कही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी, धन्यवाद। शांता कुमार जी, आप बड़ा ही ओजस्वी वक्तव्य आपने दिया, और जो विचार बिंदु आपने रखे, आई थिंक यदि पूरा विश्व उन पर चल सके तो निश्चित रूप से समय तो पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन फिर भी हम उस दिशा में अग्रसर तो हो ही सकते हैं आतंकवाद को समाप्त करने में। भीष्म जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर हम कुछ प्रश्न ले लें अगर कोई हो तो। पहले प्रश्न ले लें, फिर उसके बाद अपने बाद में बात। If anybody wants to ask any question, please. अपने डॉक्टर साहब हैं? आई थिंक डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है शर्मा जी। Can you hear me now? Yes, thank you. नमस्ते, नमस्ते श्री शांता कुमार जी, और बहुत अच्छा लगा आपको देखकर आज, और आपके विचार सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, सुंदर लगा। मेरा प्रश्न छोटा सा है कि अपने भारत के अंदर अगर हम ये समझते हैं कि बहुत से मदरसों में टेररिज्म की ओर बच्चों को ले आया जाता है, उनको थोड़ी शिक्षा दी जाती है, तो उसके विषय में सबसे प्रथम अगर हमारी सरकार, अगर हमारे देश में कोई कदम उठे तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत को है, और भारत इस दिशा में कोशिश कर रहा है, लेकिन कठिनाई है जिस प्रकार की राजनीति है। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य मेरे देश का कि राजनीति वोट के लिए हो गई, कुर्सी के लिए हो गई। मैं जब राजनीति में आया था तो मूल्य आधारित राजनीति थी। अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय कहते हम सरकार बनाने के लिए नहीं आए, हम समाज बनाने के लिए आए। अब मूल्य आधारित राजनीति नहीं रही, अब कुर्सी आधारित राजनीति हो गई। वोट के लिए कुछ भी हो सकता है।
तो इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थिति के अंदर चाहते हुए भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपसे सहमत हूं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत पर है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने ये प्रश्न है, कुछ और लोगों के सामने भी है, कि हम इस देश में ऐसा वातावरण बनाएं कि ये इस प्रकार की मानवता का अपमान ना हो छोटे छोटे बच्चों के साथ। इस दिशा में भारत को निश्चित रूप से कुछ विशेष करना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं। डॉक्टर सुरेश राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शांता कुमार जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कठिन विषय को इतना सरल करके समझाया। स्पेशली जो आपने सौभाग्य और दुर्भाग्य की व्याख्या की, आपने जो 4 बिंदु बताए इनके कारणों का और 4 बिंदु बताए इनके समाधान का, ये बहुत ही सटीक लगे। आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ डॉक्टर वफा सुल्तान की। वो सीरिया की हैं, अमेरिका में डॉक्टर हैं और यहाँ प्रैक्टिस करती हैं और सीरिया से भगाई गई हैं एक तरह से। उनकी किताब का नाम है, शीर्षक है अ गॉड हु हेट्स। और बेसिकली उनका विचार ये है कि जो भी चल रहा है जिहाद के नाम पे, जब तक उस धर्म विशेष में महिलाओं को इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा जाता, तब तक इसका कोई रोक नहीं है। वहां महिलाएं द्वयम, त्रियम या चतुर्थ दर्जे की नागरिक हैं और एक जो हेट्रेड उनमें भरी जा रही है, उससे जो बच्चे पैदा होते हैं, वो अगर प्रोडक्ट कैसे वो सुलझेगा या सुधरेगा, जबकि जो प्रोडक्ट देने वाला है उसी को ही मतलब हे दृष्टि से या हे से भी गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता है समाज में और उसका भयंकर शोषण होता है। इसके बारे में कुछ आप मतलब मैं इसको थोड़ा और समझना चाहता हूँ, आप अगर कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालें तो। आप ठीक कह रहे, भारत में भी ऐसे प्रयत्न हो रहे। एक राष्ट्रवादी मुस्लिम मोर्चा बना है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मुझे नाम नहीं आ रहा, उसके एक बहुत बड़े विद्वान ने बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का सारांश ये है कि रास्तों के बारे में अपने के बाद झगड़ा करना बिल्कुल गलत है। जो मैंने बात कही आपके सामने, बिल्कुल वो उस पुस्तक का विषय है। तो राष्ट्रवादी मुस्लिम मोर्चा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसके लोग मुझे मिले हैं, पुस्तकें लिखी हैं। इस दिशा में और काम करने की जरूरत है। और ये जो एक विचार है कि मेरा मत ही ठीक है, बाकी सबको खत्म करना, ये मेरे धर्म का, मैं समझता हूं कि मुस्लिम धर्म के विद्वानों को, बहुत से विद्वानों का ये बार बार आता है कि कुरान में ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम धर्म के विद्वान भी बैठे, उनके साथ विचार किया जाए कि इस किस्म की बातें जो प्रेरित करती है धर्म के नाम पर जिहाद को, उसको समाप्त किया जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे प्रयत्न करने चाहिए, हो रहे हैं। भारत में 2-3 इस प्रकार के लोग और इस प्रकार के संगठन हैं जो इस दिशा में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। ये काम बहुत अधिक बढ़ना चाहिए और अधिक होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। भीष्म जी आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि डॉक्टर साहब तो है नहीं, पुरोहित जी। देखिए, मैंने तो थोड़ा सा शुरू में कुछ कह दिया था। आप यही कह सकता हूँ कि बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। इसलिए बहुत ज़्यादा हमें ये मालूम था कि ये बात होएगी, पर ऐसा था कि कुछ दिनों, कुछ महीनों में ऐसा चक्र चल रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि ये बात इस तरीके से चलाई जाएगी। बहुत आनंद आया।
बहुत अच्छा लगा। यशवंता कुमार जी, आपकी सारी बात सुन के जिस तरीके से आपने कहा है वो आपका बिल्कुल 100% वही है जो पहले था, अब भी है। ईश्वर की बहुत कृपा है। हमारे जो प्रदेश के अपने प्रेसिडेंट हैं वो इस समय आ नहीं पाए क्योंकि वो किसी मीटिंग में गए हुए हैं बाहर, तो वो कोशिश की उन्होंने आने की, वो आ नहीं पाए। तो वो उनके बिहाफ पे सबको प्रणाम करता हूँ कि आप आए, और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आए। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका कर रहा हूं मैं, आपने मुझे मौका दिया सबसे बात करने का। आभारी हूँ। Namaste everyone. नमस्ते।